اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو نماز کے لیے حکم دیں، نماز کے لیے جگائیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، خود بھی نماز پڑھیں۔ ہم نے ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہے، علامہ احسان ظہیر رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی، ہم نے ان سے یہاں ریاض میں سال ہر سال پڑھا ہے، بخاری شریف ہم پڑھتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب درس کے دوران بیان کرتے کرتے فرمانے لگے، کہنے لگے صبح فجر کے وقت بچوں کو اٹھائیں، دروازے ان کے ناک کریں، ان کو ساتھ لے کے جائیں، حتیٰ کہ ان کے الفاظ میں کبھی نہیں بھولا۔ کہنے لگے حتیٰ کہ اگر آپ کی ایک رکعت ضائع بھی ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو بھی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، اہتمام کریں کہ نماز پڑھیں ہو۔ میں ایک بہت بڑے آدمی کو جانتا ہوں، یہاں پہ بہت بڑی شخصیت تھی، اس کے راوی ہمارے حافظ الیاس صاحب ہیں رحمہ اللہ، وہ بھی عظیم شخصیت تھی اپنے وقت کی۔ مجھے ایک دن کہنے لگے عبد المالک، میں نے اس شخص کو دیکھا جب وہ سلام پھیرتے تھے نا، تو سلام پھیرنے کے بعد پیچھے دیکھتے تھے کہ میرے بیٹوں میں کون کون یہاں پہ آیا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ بچوں کو وقت دیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، گفتگو، ان کے مسائل۔ یہ شدت پسندی کہاں سے آئی ہے؟ میرے عزیزو، میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، بولیے، رحمت للعالمین، وہ تو رحمت ہی رحمت تھے۔ اور اسلام کی حالت یہ ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، ہر معاملے کے اندر اسلام جو ہے وہ جو ہوتی ہے نا رفق کہتے ہیں نرمی کو اسلام پسند کرتا ہے اپنے گھر کے اندر۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں کثرت کے ساتھ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک، تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت، اور دوسری وہ دعوت المسافر، اور تیسری جو ہے فرمایا وہ دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے کثرت کے ساتھ، اپنے بیٹے کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اولاد کے لیے کثرت کے ساتھ، اپنی بیوی کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ انشاءاللہ یہ دعائیں جو ہے یہ قبول ہونے والی ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہے میں اس پروگرام کے انعقاد میں کامیابی کے حوالے سے یہ بات کہوں گا، یہ امت مسلمہ ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور عزیزو، وَهَذِهِ الْأُمَّةُ كَالْمَطَرِ، کسی نے کہا کہ یہ امت جو ہے یہ بارش کی طرح ہے، الخیر فی اولہا، بارش آتی ہے نا اس کے شروع میں بھی خیر ہوتی ہے، وہ اوسطہا، اس کے وسط میں، اس کے درمیان میں بھی، وہ آخرہا، اس کے آخر میں بھی۔ یہ امت مسلمہ جو ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور اپنے پروگرام کے اختتام میں میں نے آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنانا ہے، انشاءاللہ زیادہ لیکن آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ میں اکثر اپنی اولاد کو یہ واقعہ سناتا ہوں، آپ کو بھی سناؤں گا، اور آپ بھی اس کو اپنے بچوں کو سنائیے گا۔ اموی بادشاہ اپنا تھا، کیا کہنا چاہیے، ایک امیر آدمی تھا اموی خاندان کا، اور آپ کو پتا ہے جب عباسیوں کی حکومت آئی تو ان کے پیچھے چن چن کے انہوں نے، خیر اب اموی سردار امیر اپنے بیٹے کے ساتھ بھاگ رہا ہے گلی کے اندر، پیچھے
पुलिस उनको पकड़ने के लिए, जान का खतरा था। दरवाजा देखा, दरवाजा खुला हुआ है, उसके अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बूढ़ी औरत, उसने उसको कहा अमान चाहता हूं। उसने कहा बिस्मिल्लाह, दरवाजा बंद कर दिया। अब पुलिस को तो नहीं पता कौन है पीछे। उस खातून ने देखा, शक्ल, सूरत, लिबास, बड़ा आदमी लगता है। उसके बाहर घर में एक ही बकरी थी, उसने उसको ज़बह किया, मेहमानों को खिला दिया। सुबह हुई, ये बाप बेटा जब जाने लगे तो बाप ने अपने बेटे से पूछा, हां बच्चे ये बताओ तुम्हारे पास खुर्जी में क्या है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उसने कहा वालिद मोहतरम 100 दीनार है। और ये वो था कि 4 दिरहम की एक बकरी आ जाती थी, और 1 दिनार के अंदर 12 दिरहम होते हैं। उसने कहा अब्बा जान मेरे पास 100 दीनार है। वालिद ने कहा बेटे ऐसा करो, ये 100 दीनार इस औरत को दे दो। बेटे ने कहा अब्बा जान हम भागते फिर रहे हैं, दुश्मन हमारे पीछे है, हमें पाई पाई की जरूरत है। इस खातून को अगर 10 दिनार भी दे दिए जाएं तो इसके लिए बहुत ज्यादा है। मेरे अजीजों, मैं ये कारकुनों को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने अजीजों को ये वाकया इसलिए सुनाने वाला हूं और इसलिए सुनाता हूं, इसके अंदर मेरी और आप सबकी तरबियत है। उसके बेटे की जुबान से एक जुमला निकल गया। उसने कहा अब्बा जान इसको 10 दिनार भी दे दिया जाए तो बड़ी बात है, इसको क्या पता कि हम कौन हैं। उसके बाप ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा इसको मालूम नहीं है कि हम कौन हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम, बोलो, हम कौन हैं। अजीजों, जब दुनियावी मामलात आए, तजारत, कारोबार, एक दूसरे के साथ लेन देन, सोचें, गौर करें, कहीं ऐसा ना हो हमारी जमात को, हमारे अकीदे को, हमारे मनहज को दाग लग जाए। लोग ये बात कहें कि ये देखो अपने आप को मुवahhid कहते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इसके अंदर ये अखलाकी बीमारी है, इसका किरदार ऐसा है, ये झूठ बोलता है। नहीं मेरे अजीजों, खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहले जाल को, अपने बच्चों को, अपने माशरे को जहन्नम की आग से बचाओ। और एक और बात, मुहसन बने। वल्लाहु युहिब्बुल, बोलो, मुहसिनीन। अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करते हैं। पिछले हफ्ते की बात है, हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है अब्दुल्ला अल-मुखैलद, बड़ा आदमी है। यूट्यूब के ऊपर उसके बहुत सारे वाकयात हैं, और मैं बहुत सारे वाकयात, मुझे नहीं पता आप में से किसी ने मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब किया हुआ नहीं या नहीं है। बहरहाल ये बड़ी हवालन से है, बड़ा आदमी है। उसने वाकया सुनाया और वाकया बड़ा जबरदस्त है। उसके बात खत्म करके इंशाअल्लाह बात खत्म करता हूं। कहता है कि ये भाई पिछले हफ्ते की बात है, मैं पिछले एतवार उसके घर था। अबू अब्दुल अजीज उसका नाम है, वैसे अब्दुल्ला अल-मुखैलद, तो मैंने अर्ज किया ना कि बड़े खानदान, बनु हवाजन। कहते हैं कि मेरा एक शौक था, सर्दियों के मौसम में मैं तबूक चला गया। अरबों के आज भी जो है ना वो पुराने उनके खैमे लगे हुए हैं, लोग दाखिल होते हैं, कहवा, चाय, शाई, खजूरें, ये आम सी बात है। कहता तबूक के अंदर मैं एक दफा देखा, मैंने बहुत बड़ा खैमा लगा हुआ। कहता मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, अंदर दाखिल हो गया। हाँ भाई आदखुल, बिस्मिल्लाह, आ जाओ। वो कहवा लेके आ गए, खजूरें लेके आ गए, ये आम सी बात है। आप भी कभी जाएं, अनजाए करें, मैं करता हूं।
यकीन जानिए, बड़ी इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें ये कुछ एटिकेट्स आने चाहिए, सीखना चाहिए। खैर, कहता है कि बैठ के गपशप शुरू हो गई। इतनी देर में एक टेलीफोन आ गया। कहता है कि मैं उसको खुलासे को, यानी उसको लंबी बात ना हो जाए, अजीजों, ये जिनका खैमा था ना, इन्होंने अपने कुछ अपार्टमेंट बनाए हुए थे जिसको कहते हैं शुगा मफरूशा, और लोग वहां पे आते हैं और वो सर्दी के मौसम में वहां पर तबूक में बर्फबारी होती है और जो बर्फबारी को एंजॉय करना चाहते हैं वो वहां पे आए। अब हुआ यूं कि सुबह सवेरे 3 गाड़ियां आई अपार्टमेंट जो उनके शुगा मफरूशा है वहां पर। उन्होंने कहा भी हमें एक दिन के लिए शुगा चाहिए। उनका बिस्मिल्लाह। वहां पर वो कोई इंडियन था या पाकिस्तानी था या कोई बंगाली था, हारस आम तौर पर। उसने दिखाया उनको, कमरे वगैरह दिखाया, उनको पसंद आएगा। कितना किराया? उनका 700 रियाल है। लो जी, वो 700 रियाल उन्होंने पे किया उसको, और उसके अंदर चला दाखिल हो गए। 2 घंटे के बाद वो जो बाबा था उनका बड़ा, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं रहना, हमें वापस जाना है। उस हारस के पास गए, कहने लगे भाई वो 700 रियाल हमारा वापस करो, इसलिए कि हमने वापस जा रहे हैं, हम नहीं ठहरना। वो जो हारस था उसने कहा जी बात ये है, मैं तो एक अब्दुल मामूर हूं, मैं तो एक नौकर हूं, मुलाजम हूं। जिस वक्त आपने मुझको 700 रियाल दिए थे तो मैंने अपने मालकान को टेलीफोन करके बता दिया था, मैंने उनसे बताया था जी कि मुझे 700 रियाल मिले हैं और उन्होंने ये अपना कमरे लिए हैं, तो मैं तो अगर आपको वापस कर दूंगा तो मेरे ऊपर तो वो मुसीबत बन जाएगी, मुझसे वो लेंगे। उसने कहा नहीं, आप वो दुआ वगैरह। उसने कहा देखो बात जो, हाथ जोड़ दिया उसने कहा जी ऐसा है, अगर आपने लेना है, पैसे लेने हैं, तो ऐसा करें कि वो उनका खामा लगा हुआ है, वहां चले जाएं, उनसे जाकर पैसे ले लें। लो जी नाज़रीन कराम हज़रात, थोड़ी देर और अबू अब्दुल अज़ीज़ कहता है कि मैं वहां बैठा हुआ हूं, गुफ्तगू सुन रहा हूं। अब उसने टेलीफोन का अपने मालकान को बताया, मालकान ने अपने वालिद को बताया, वालिद ने कहा खबरदार पैसे वापस नहीं करने, इसलिए कि उन्होंने वॉशरूम इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद वो टेलीविजन देखा है, फलां किया है, 2-3 घंटे रहे हैं, पैसे वापस नहीं करने। उतनी देर में 3 गाड़ियां आ गई खैमे के सामने। नीचे उतरे, आके जनाब अली उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर, पैसे हमारे वापस करें। भाई पैसे कैसे वापस करें, आपने 2-3 घंटे इसको इस्तेमाल किया है, आपकी मर्जी है। लड़ाई शुरू हो गई। पहले वो बैठे थे, फिर वो खड़े हो गए। वो कहता है इतने में वो जो खैमे का जो मालकान थे उनमें से एक नौजवान वहां से भागा अपने घर की तरफ, पीछे उनका घर था। अबू अब्दुल अज़ीज़, और ये बात मैं आपको सिखाना बताना चाहता हूं, जो खुलासा है इसका। अबू अब्दुल अज़ीज़ कहता है कि मैंने देखा कि अभी चंद मिनटों के अंदर अंदर ये नौजवान जो अपने घर भाग के गया है, ये वहां से हो सकता है कलाशनकोफ लेके आए, पिस्तौल लेके आए, और या कोई हथियार लेके आए, और अभी थोड़ी देर के बाद होगा क्या होगा, कारसा हो जाएगा या कत्ल हो जाएगा, बंदे मर जाएगा एक, और फिर क्या होगा, बंदा मर गया, फिर उसके बाद जेल, फिर उसके बाद आपको पता है कि यहां सऊदी अरब का जो निजाम है उसके मुकाबले उसके। वो कहता है कि मैं देखता रहा, और इसको कहते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कहता है कि मैं बाहर भागा अपनी गाड़ी की तरफ, वहां से मैंने 700 रियाल अपनी गाड़ी से लिया, और वो जो बड़ा था ना उनका बाप, मैंने वो 700 रियाल उसकी खिदमत में पेश किया। मैंने कहा या ये इलाका आपका है, ये अपार्टमेंट आपके हैं, जब आपका जी चाहे ये बिस्मिल्लाह, ये पैसे मैं वापस करता हूं आपको। अब क्या हुआ, झगड़ा बोले खत्म हो गया, वो पैसे उसने ले लिए, चला गया। अब कहता है कि थोड़ी देर के बाद उनके वालिद का फोन आ गया। उन लड़कों ने मुझसे कहा कि तू कौन होता पैसे देने वाला 700 रियाल। उसने कहा भाइयों ये बताओ कि मैं अपनी आंखों से कत्ल होते देखता, ये 700 रियाल के पीछे एक तुम्हारा भाई भाग के गया है, अपने घर गया है, वो कोई कलाशन को लेके आता, कोई आला कत्ल लेके आता, कोई छुरा लेके आता, यहां पे जमा होते लोग, और फिर उसके बाद क्या होना था सब समझते आप।
बात उनकी समझ में आ गई। वो कहता है कि थोड़ी देर गुजरी, उन्होंने अपने वालिद को बताया, उसके वालिद का फोन आ गया। उसने कहा मैं तुम्हें हल्फन कहता हूं कि तूने दोपहर का खाना खा के जाना है। कहता मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता थोड़ी देर गुजरी, मैंने एक नौजवान को देखा, एक भाई को देखा, उसने बकरा ज़बह करके उसकी जो क्या कहते हैं उसकी सिरी वो हाथ में पकड़ी हुई और वो खैमे के सामने से गुजरा। अब मुझे पता चल गया कि उन्होंने क्या किया है, बकरा ज़बह किया है। और बकरे की कीमत कमोबेश कितनी थी, 1000 रियाल। और पैसे का झगड़ा कितना था, 700 रियाल। कहता है कि मैंने भी उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं इंतजार करूंगा, खाना खा के जाऊंगा। कहता है थोड़ी देर गुजरी तो वो गाड़ियां जो थी फिर वापस आ गई। नीचे उतरे, उन्होंने आते ही मुझे आके कहा, बाबे ने आके कहा तू कौन होता पैसे देने वाला, हमें पता चला कि तेरा तो उनके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। उसने कहा हम ये बताओ कि मैं यहां पे कत्ल होता देखता। उसने कहा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये पकड़ो 700 रियाल, गलती मेरी है। गलती बोलो। उसने तस्लीम किया। उसने कहा असल बात ये थी बच्चे, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, आज मैंने सुबह गोली नहीं खाई थी और मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो अप हो गया, और गलत फहमी की बुनियाद पर। और मेरे अजीजों, वो जो नौजवान थे वो भी आ गए, उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा तू हमारा चाचा है, बड़ा है भाई। और फिर वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद खाना पक के आ गया, वो बकरा तैयार होके आ गया और हमने एक ही सहन के ऊपर बैठकर खाना खाया। आइए कुरान पाक की आयत सुनते हैं। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। भागो, दौड़ो, कोशिश करो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की तरफ वो काम करो जो रब को राजी करने वाले हैं। और आगे क्या है, इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्द, उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। उइद्दत लिलमुत्तकीन, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। और मुत्तकीन की खूबियां क्या है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, जो अल्लाह के लिए खर्च करते हैं मुश्किल वक़्त में, तंगी के वक़्त में, आसानी के वक़्त में। वल काज़िमीनल ग़ैज़, और गुस्से के ऊपर क्या है, बोलो, काबू पाने वाले। वल काज़िमीनल ग़ैज़, अपने गुस्से के ऊपर काबू पा जाने वाले। वल आफ़ीना अनिन्नास, और लोगों को माफ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, जो बड़े हैं उनको बुजुर्ग, जो छोटे हैं, जो मेरे भाई हैं, अजीज़ हैं, बच्चे हैं, मोहसन बने। अपने दोस्तों के साथ, अपने माशरे के अंदर अपना मुकाम बनाए मोहसन का। अल्लाह ताला जो है मोहसिनीन को क्या करते हैं, बोलो, पसंद करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको मोहसन बनाए। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, आफ्ताब का और जितने हमारे अकाबरीन हैं उनका, कि अल्लाह ताला उनको सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस किस्म के प्रोग्राम होते रहें, हम गुफ्तगू करते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।